Hi, I'm Kirsten Seymour, and we're here at Dar Uloom Haqqaniya in Akora Atak, the famous madrasa. Earlier in the show, we took you to Swat Valley, to the de-radicalization centers, where young boys and men are being de-radicalized as we speak. But where did all this radicalization begin? Well, many allege it started right here. The famous Mullah Omar was a student here. He's the head of the Taliban during the Afghan Civil War, and good friends with Osama bin Laden. He is now under the investigation of the United States, and they are on a manhunt, and he is enemy number one. Today, we're going to take a tour of the madrasa, see where Mullah Omar lived, and we're also going to have a rare sit-down one-on-one interview with his former teacher, Maulana Sami ul Haq. The madrasa here is every bit as old as Pakistan itself. The founder, Maulana Abdul Haq, brought the strict Deobandi system here from northern India. And life here is strict. Discipline is emphasized, and yet the men are polite and warm towards us. One gentleman takes us for a tour of the madrasa. Oh, this is beautiful. The mosque is beautiful, with intricately and finely carved minarets. The inside walls are bedecked with hand-painted tiles. It's a hot, lazy summer day, and the little boys in the courtyard have found a tree to sit under and play a nice long board game to pass the time. An old tree is standing in the center of the courtyard. Students here are on summer break. Most of them from tribal areas will be spending their summers in war zones, so not sure how much of a break they'll actually be getting. But some are still hanging around the campus. A teacher who has been here for over 30 years is friendly and comes over to say hello. Teacher from madrasa. Aapka kya hai? Final class. Oh, okay. Maulana Muhammad Ibrahim Fani. But it's a long, belabored walk as he's just explaining, having lost some of his toes. On this tour, we can see the dormitory where the boys study and sleep. Living quarters are tight, with up to 5 boys sharing one room. But the madrasa is picturesque, and the architecture of the dorms is no less impressive. But what's most striking about this place is that it feels very peaceful. Inside one of the rooms where Mullah Omar would have lived, again, he would likely have shared this space with over 5 boys, as one of the groundsmen explains. Postgraduate level students are here now for the summer to study. One is writing a biography. The library is fascinating and full of old, rare religious books. Here we are in the library of the madrasa. I'm holding a very old book. This book here is by Fatawa Azizia. It's in Arabic, so it goes from the back. This book's over 100 years old, and this library holds many such books that date back 100 more years. For example, here we have the Sahih Sitta, all of the 6 books, including Sahih Muslim, Sahih Bukhari. This is actually a really gorgeous library. It's been here since 1947 when Maulana Abdul Haq opened up this entire madrasa, not very long after the birth of Pakistan itself. We would go along here. So all of the students who've ever come in and out of this place, this madrasa, would have studied in this library and used these books exactly. And some of the books are absolutely extraordinary if you look at the bookends and the backs of them all. And these are some of the older books here coming around the corner. For example, you see this in this key lime green with red dots. You can tell how old it is by looking at the paper. Extremely delicate, very thin milled paper, handmade milled paper. Really extraordinary, really beautiful. The cleric who is giving us this tour explains about the number of students per classroom and then takes us to the main prayer hall. In the one class, we have 1,500 students. And 1,500.
student? In one class, in the classroom. And how many We classes? have the 7th class. 7 classes. Yeah. We head upstairs where the historic hall where even Osama bin Laden is said to have preached, as well as Mullah Omar and many other Taliban leaders. Classroom. I am silenced by entering this room, going over in my mind what this place represents. The people who were in this room are the men who the whole world is now fighting. They say they are fighting for Allah. Can you discredit a man for his beliefs or for his God? Jihad is what they called it when Osama bin Laden justified and claimed the attacks on the Twin Towers in America, which he did by the support of the men who filled up this room. Over 10 years later of bloodshed of enormous proportion, still we are fighting these terrorists. But what is jihad? What is an infidel or a kafir? And can we get this jihad lifted? Is there a way forward? I'm about to find that out, and it is a moment that I have looked forward to for most of my adult life. The young boys here are pure, and the only disturbing thought is that anybody might be teaching them to hate anybody else. But the war itself has become the teacher of hatred. What will Maulana Samul Haq tell us today about war? These Taliban warriors that are so ruthless? Does Islam teach us about this type of jihad? We're about to find out. On the wall outside of the hall is an alumni photo gallery. As graduate students. This one. It is a regularity. And now the big moment finally arrives. The meeting with Maulana Samul Haq. Tonight we'll be talking with Maulana Samul Haq. He is the Chancellor for Jamiat Darul Haqqani Madrasa. He's also the President of JUIS. Thank you so much, Maulana, for being with us this evening. Could you explain to me in the Deobandi sense what is jihad when you talk about supporting the Taliban's fight in Afghanistan and the Taliban, Tehrik-e Taliban's fight here in Pakistan? How is that framed in jihad? जिहाद अरबी में स्ट्रगल को कहते हैं, जद्दोजहद। वो स्ट्रगल ये नहीं है कि किसी कौम पर कब्जा करे, हुकूमत के लिए लड़े, माल दौलत लूटने के लिए लड़े और कानूनी सिस्टम बनाए, उसको जिहाद नहीं कहते हैं। जिहाद कहते हैं किसी जालिम को जुल्म से रोकने को। अगर वो जालिम किसी कौम की आज़ादी सल्ब करता है, इस वक्त कोई सुपर पावर छोटे और कमज़ोर कौमों पर कब्ज़ा करे, उनके वसाइल, उनके सोर्सेज, उनके मादनियात, उनके पेट्रोल, उनके गैसों पर उनकी नज़र हो, तो हर शख्स अपने घर में अपने घर की हिफाजत चाहता है। जिहाद यही है कि एक घर में एक अमन अमान से एक फैमिली रह रही है और बाहर एक डाकू आ जाता है, वो दरवाज़ा तोड़ता है और घर में आकर बैठकर कब्जा करना चाहता है और उसके जान माल इज्जत आबरू को लूटना चाहता है, तो हर शख्स ये हक देगा उस घर वाले को, बहुत कमज़ोर क्यों ना हो, कि वो अपने बचाव के लिए हर कोशिश हर तरीका इस्तेमाल करे। इसी को जिहाद कहते हैं। एक मुल्क में जाकर नेटो को मुदाखलत की क्या ज़रूरत है? यानी आप लोगों की फिर भी आंखें नहीं खुलती हैं, फिर भी सोचते हैं कि हम कुछ जुल्म नहीं कर रहे हैं। पूरे दुनिया का नक्शा में देखें, किसी गैर मुस्लिम स्टेट पर किसी मुसलमान ने कब्जा किया है? रूस से लेकर वहाँ तक आप लगे हैं मुसलमानों को कत्ल करने के दरपे हैं और गुलाम बना रहे हैं, कानूनी सिस्टम फिर पैदा कर रहे हैं। I want to read something from the Quran to you. It says, and fight God's cause against those who wage war against you, but do not commit aggression. So in the Quran, Allah has called for you not to commit aggression, even if somebody's fighting a war against you. At what point is terrorism considered defense, and where do you draw the line between defense and aggression? ये आपको लकीर कहता हूँ मैं कि अमेरिका और मगरबी अक़वाम और ये सब कुछ जारहियत में लगे हुए हैं और मुसलमान बेचारे हाथ पांव वो मार रहे हैं कि दिफा करें। मुसलमान खुद जारहियत का निशाना बने हुए हैं। यही फ़र्क है कि बड़ी ताकतें जारहियत करती हैं और मुसलमान बेचारे दिफाई पोजीशन में भी उनको हक नहीं देते आप लोग।
और कुरान करीम ने ये भी कहा है कि मुसलमानों कि किसी खित्ते पर कोई कब्जा करे और मुसलमानों को ग़ुलाम बनाए और उन पर ज़िंदगी गुजारना तंग कर दें, तो फिर अल्लाह ने यह भी कहा है कि उन मजलूमों की मदद को आपने पहुंचना चाहिए, उनको जुल्म से निकालना चाहिए। In the Quran, there's no mention of the word state. We have a political Islam now. Not in a hadith and not in the Quran is there a mention of an actual word like a state. And yet, there's a lot of talk about how a state would be run according to Islam. रियासत का तस्वुर कुरान में है। रियासत एक निज़ाम का नाम है जिसको दीन कहते हैं। उस दीन कायम करने के लिए ये ज़मीन सारी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी है, तो फिर इसमें मेरी इबादत होनी चाहिए। लेकिन इस्लाम फिर समझाता है कि तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ख़ास तौर से ईसाइयों को मुखातब करता है कि आओ एक बात पर इकट्ठे हो जाए जो हमारे लिए नुक्ते इत्तिफाक बन सकता है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। बुत परस्ती और इंसानों की ग़ुलामी और डिक्टेटरों के साथ चलना, तो गोया इंसान को डिक्टेटरी से, आमिरियत से इस्लाम निजात देता है। अब उसके लिए तो खुद ब खुद ये सारी ज़मीन अगर अल्लाह की परस्त हम शुरू करें और आपस में झगड़े ख़त्म करें तो एक अमन सलामती का एक माशरा पैदा होगा। पूरा एक नक्शा कुरान ने खींचा है कि बादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम, कि अल्लाह कहता है कि मैं इनको हुक्मरानी दूंगा फिल अर्ज़। ये सारा कुरान इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि ये खुदाई स्टेट बन जाए सारी, और झगड़ा और शर और फसाद न हो और भाई के भाई रहें, एक मज़हब और एक दीन पर रहें। लेकिन ये इस्लाम नहीं कहता कि कोई तुम्हारा दीन कबूल न करे तो तलवार लेकर उन पर चढ़ जाओ, इसकी भी इजाज़त नहीं है। What is a kafir? You hear the word kafir a lot, and that there's, the sort of rejection of the infidels and a rejection of the kafirs. If I may just explain, it was an idea in my own, I studied Islam some, and I would love to understand, because according to the book about the book I showed you, the Peace Prophet book, it said that a kafir were just the people who were directly around Muhammad, and that they're not non-believers, but they're actually people who are openly rejecting the message of Allah through the Prophet, peace be upon him, Muhammad. If that's true, then the infidels are non-believers only in that they haven't received the message of Muhammad, and in that case they're considered sacred. So is the way of achieving an Islamic caliphate or a political Islam, how can you handle kafirs and infidels in a peaceful way while you also assume that there's aggression against Islam itself? बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने इस्लाम को कहा है और नेमत को कबूल करना चाहिए। काफिर का माना यह है किसी अच्छी चीज़ को छुपाना, यानी हक को और बहुत बड़ी नेमत को उससे लोगों को महरूम रखना। कुफ्र का माना यह है ढांपना, नेमत से इनकार करना। अब दूसरी बात यह है कि इस्लाम कहता है कि अगर आप की दावत वो कबूल नहीं करते तो आप उनको एक मुअज़्ज़ज़ शहरी की तरह अपने मुल्क में जगह देंगे और उनको तमाम हुकूक हासिल होंगे जो मुसलमानों को हासिल हैं। यानी उनको ज़िम्मी कहते हैं। ज़िम्मी का माना है कि वो हमारे ज़िम्मा है, यानी हमारी ड्यूटी है, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, जान और माल और इज़्ज़त और आबरू उनके मसाजिद की, उनके गिरजों की। What would you say as a Maulana and a religious leader? What would you say to the conundrum or the problem with the Western society feels afraid of fundamentalism and extremism, and they feel that the goal is the caliphate, which is to destroy democracy, destroy civil liberties, and overtake the world. And so they want to fight that cause, against that. So they feel that there's an aggression against them. And then when you talk to the religious leaders like yourself over on the other side of this war,
they feel the same way. They feel like, oh, well, you know, the democratic rulers are trying to destroy Islam. Do you think maybe everybody might be wrong in assuming that the others are actually trying to destroy a system of government, or that they're really trying to destroy Islam? इस्लाम महाज़ारा ही नहीं चाहता है कत्ल। इस्लाम कहता है कि इन मज़ाहिब में फिर ख़ास तौर से ईसाइयत का अल्लाह ने ज़िक्र किया है कि तुम्हारे करीब तरीन यानी हमदर्द या एक दूसरे के दोस्ती के काबिल अगर हैं दोनों की आपस में, वो ईसाइयत है, जिसको उस इस्तिलाह में नसारा कहते थे। उस महाज़ाराई को मफाद परस्त तबकों ने वो फैला दिया। इस वक्त वो मगरिबी ताकतें हैं और एक तरफ इस्लामी ताकतें हैं। अब खुद देखें कि कौन ज़्यादती कर रहा है। अरबों खरबों रुपए लग गए अमेरिका के, लेकिन अपने अवाम के जहन में डाला है कि अगर हम हुक्मरानी हमारी अगर हम न करें ये हमले और फौज न भेजें तो आप लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो अपने अवाम को उन्होंने डरा कर रखा हुआ है ताकि वो उन पर हुक्मरानी कर सकें और उनके वसाइल और उस पर कैपिटलिज्म का निज़ाम सारा, तो ये नफ़रत उन्होंने फैला दी। अब इधर मुसलमान जब जुल्म देखते हैं और बमबारी देखते हैं और कभी एक मुल्क पर हमला कभी दूसरे पर, वो मुसलमान भी फिर मैदान में आते हैं, वो खलीज और बढ़ता जाता है। इलाज यही है कि बड़ी ताकतें जो हैं वो अपने पॉलिसियों पर नज़रसानी करें और मुसलमानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, और हम मुसलमान कतअन गोया उनकी दोस्ती के हाथ के साथ धोखा नहीं करेंगे। ना मुसलमान चाहते हैं कि हम अपने झंडे लाकर चीन में और रूस में और बरतानिया और अमेरिका में गाड़ दें। How did you feel when you heard about Osama bin Laden's death? ये लोग रूस के खिलाफ, रूस के जारहियत के खिलाफ दुनिया से आए थे, जहाँ जमा हुए थे। उन्होंने बहुत बड़ा गोया कुर्बानियाँ दी और सुपर पावर को जन्म कदम जमाने का मौका नहीं दिया। और पहले दो सुपर पावर थे और इन लोगों की कुर्बानियों की वजह से अमेरिका वाहिद सुपर पावर बन गया। हमारी इस कुर्बानियों की वजह से दीवार बर्लिन टूट गया, दोनों एक शहर अलग थे। हमारी बरकत से मशरिकी यूरोप आज़ाद हो गया। इन कुर्बानियों की वजह से सेंट्रल एशिया सारा आज़ाद हो गया। आज मकदूनिया और अल्बानिया और ये तमाम कम्युनिज्म के अजाब से निकल चुके हैं। अगर अमेरिका उस पर कनाअत कर जाता कि सोवियत यूनियन चला जाए और अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन लीडरों से दोस्ती को निभाता, अफ़गानिस्तान की तामीर नौ करता, आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये सब उसके मुट्ठी में होते, हमारे दिल उनके साथ होते। हमें मलबा डाल दिया हमने दहशतगर्दी का कि ये पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तानी दहशतगर्द हैं। ये कौन सी पॉलिसी थी? अगर आप ऐसा न करते तो शायद आज इंसानियत सुख का सांस लेती और ये खलीज पैदा न होता। I understand, and I can see how this happened. And what I'd like to ask you is, just repeating the question more time, as his friend, as this personal friend of Osama's, how did you feel when you very first heard the news? मुझे अभी तक यकीन नहीं आता है कि ये उसामा बिन लादेन के साथ क्या हुआ है। ना अमेरिका अभी तक कोई सबूत पेश कर सकता है और हमें अभी तक एक ड्रामा लगता है। उसामा है दुनिया में या नहीं है ये तो अल्लाह को मालूम होगा, लेकिन ये सारा खेल एक मजाक सा लग रहा है हमें, और ना अवाम इस पर यकीन करते हैं। In 1999, you gave a presentation here in front of 5,000 or so students, and you were chanting "Death to America." That was in 1999, before the attacks on September 11th. Why at that time were you shouting "Death to America"? उस वक्त जंग शुरू हो गई थी, तालिबान को हुकूमत नहीं करने दे रहा था, वो दाखिल हो गया था। सन 95 में अमेरिका सारा अफगानिस्तान में बैठ गया था और उनकी हुकूमत सारी उन्होंने दबा कर दी थी। मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कब कहा था किस, लेकिन पूरे पाकिस्तान के घर घर से, मस्जिद से और हर मदरसे से, हर कॉलेज से, हर यूनिवर्सिटी से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगते हैं
और वो ड्रोन हमले कर रहा है, हमारे बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहा है। हमारे पास तो सिर्फ ये तलवार नहीं है, टैंक नहीं है, जहाज का जवाब बम का जवाब बम से नहीं दे सकते। तो फिर इन बेचारे मुसलमानों को ये हक तो दो ना कि जुबान से कम कहने कि अमेरिका मुर्दाबाद। When you were the teacher of Mullah Omar, was there anything about him as a younger man that stood out to you that he was going to be a leader of a movement, Taliban? यहाँ हजारों तालिब इल्म होते हैं और छोटे छोटे उम्र के, अगर वो आया भी होगा तो हमें कुछ यकीनी मुस्तकबिल का इल्म मालूम नहीं होता है, अल्लाह ताला के इल्म में होता है। बाद में एक गुमनाम शख्स को अल्लाह ताला ने अफगानिस्तान में अमन के क़याम का ज़रिया बना दिया। जो काम बड़े बड़े लीडरों से, जो 7 अफगान पार्टियाँ थी, उन्होंने अपने मुल्क को तबाह किया, खाना जंगी, और एक तालिब इल्म को अल्लाह ने उठाया तो उसने अमन कायम किया, नेक काम किया है। आप अब भी उसके साथ ताल्लुकात ठीक कर दें, ये जंग इलाज नहीं है। बड़ी ताकत के लिए बड़े हौसले की ज़रूरत है और अफगानिस्तान में न करज़ई अमन कायम कर सका है, न अमरीका कामयाब हुआ है। अब दोस्ती की हाथ बढ़ाएं मुल्ला उमर और आज़ादी चाहने वाले सारे लोगों के साथ, ये सारी नफरतें ख़त्म हो जाएंगी। A woman called Homa Sultani, and she's from the Golzai tribe in Afghanistan, the same one, and she's in the lower house parliament in Afghanistan. She says that she talked to Mullah Omar in the last 2 weeks, and he's asked her to mediate with President Karzai. Do you believe that? Because the CIA in America is saying he's here in Pakistan. Do you think that Mullah Omar is in Afghanistan? ये बात तो मालूम नहीं है हमें कि मुल्ला उमर एक जगह तो ठिकाना नहीं बनाता होगा। ये भी बड़ी हमाकत वाली बात हमें लगती है कि उसामा बिन लादेन आया और एक छावनी में 5 साल तक बैठा रहा। तो अब मुल्ला उमर भी इस हादसे के बाद तो अपने क़याम को खुफिया रखेगा लाजिमन। उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है कि वो अफगानिस्तान में है या कबाइल में है या पाकिस्तान में है। और ये ज़्यादा सोर्सेज तो बड़े अमेरिका के होने चाहिए, उसको शायद मालूम भी होगा। तो अब ये बात हमें मालूम नहीं है कि हुमा सुल्तानी कौन है, ना हमने ज़िक्र सुना है। और मेरे ख़्याल में अगर वो इस तरह कुछ बात कर सकती है तो बड़ी अच्छी बात होगी कि खून खराबा ख़त्म हो जाए और ऐसे लोग होंगे पार्लियामेंटों वगैरह में। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि अमेरिका इस मुज़ाकरात में संजीदा है और वो कोई एजेंडे के ऊपर बात करना चाहता है। अमेरिका वहाँ से अब वापस जाना चाहता है। उसके लिए 2 इशू थे बड़े सख्त कि एक तो उसामा बिन लादेन को आपने ज़िंदा कैसे छोड़ा, फिर फ़ायदा क्या हुआ कि अरबों खरबों रुपए डॉलर ज़ाय किए। फिर यह है कि तालिबान के साथ तो आप जंग लड़ चुके 9-10 साल, कामयाब नहीं हुए, तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके, तो आप भाग कर आ रहे हैं। अपने अवाम लाज़िमन ये पूछेंगे। तो अमेरिका ने ये दोनों ड्रामे किए हैं। एक ये है कि देखो उसामा बिन लादेन तो ख़त्म हो गया है, अब मैं कामयाब हो गया हूँ, और दूसरी बात ये है कि तालिबान से हम मुज़ाकरात हो रहे हैं इसलिए हम आ गए हैं, और मुज़ाकरात होंगे वगैरह नहीं। The attacks on September 11th that were instruments of Osama bin Laden and your contemporaries, they killed a lot of innocent people, including some Muslims. But in the response that we've gotten from people who are in favor of those attacks, you feel no sympathy for infidels, and it doesn't matter if you kill infidels if it's in the name of Islam. Is that actually true? ये आज तक ये साबित नहीं हुआ कि ये मुसलमानों ने किए थे। कोई सबूत अभी तक पेश नहीं आया। ज़्यादा नजरें यहूद पर जाती हैं कि यहूदियों ने ये ऐसा काम किया कि अमेरिका मुसलमानों और ईसाइयों का एक न ख़त्म होने वाला जंग शुरू हो जाए, और इसका सारा फ़ायदा ना अमेरिका को पहुँचेगा ना मुसलमानों को। ये सारा फ़ायदा इस जंग का यहूदियों को पहुँचेगा। एक बड़े प्लानिंग से उन्होंने एक कुर्बानी दी, और आज तक कोई चीज़ सामने कोई नहीं आई किसी अदालत में, किसी आलमी उसमें कि ये उसामा बिन लादेन या इस किस्म के लोगों ने किया है। Would you like to see a caliphate in Pakistan? वो एक हुकूमत चलाने का एक तरीका है जिसमें सबसे दयानतदार और पाक साफ इंसान वो हुक्मरान होता है। फिर उसके साथ एक बहुत बड़ी मजलिस शूरा होती है, और शूराई निज़ाम में वो मशवरा करता है। उसमें डिक्टेटरशिप का और आमिरियत का
तस्वुर भी नहीं हो सकता। तो ऐसे अच्छे निज़ाम को अगर कहीं भी मालूम हो कि ये निज़ाम बहुत अच्छा है, तो आप और हम सबको आकर मिलकर इस निज़ाम को कायम करना चाहिए, क्योंकि आपके और हमारे निज़ामों ने तो इंसानियत को कुछ नहीं। Do you think the Pakistan state is the proper Islamic state? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, लेकिन इस्लाम इसमें आया नहीं है अभी तक। अंग्रेजी निज़ाम के होते हुए कोई स्टेट इस्लामी नहीं हो सकता है। हमारी कोशिश ये है कि इस्लाम का जो फलाही निज़ाम है, आदिलाना निज़ाम है, जिसमें कुत्ते की मौत और बीमारी का भी स्टेट जिम्मेदार होता है, वो निज़ाम आ जाए और लोग इस कानूनी सिस्टम और इस जुल्म से निकल आएँ। हमारी कोशिश है कि यहाँ जमहूरी तरीके से निज़ाम चेंज हो जाए। Recently, the Taliban have said they've declared a jihad against the state of Pakistan. Would you be in support of that jihad? पाकिस्तान उस कोलिशन में शरीक हो गया है, इसलिए तालिबान कहते हैं भाई है आपका और वो आपके दुश्मन के साथ खड़ा है और दोनों इकट्ठे होकर आपको मारना चाहते हैं, तो आप उस भाई के साथ क्या करेंगे? तो तालिबान कहते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी से इस जंग से पाकिस्तान निकल आए। पाकिस्तान को इस जंग में कोई दखल की ज़रूरत नहीं है। झगड़ा है तो अफगानिस्तान और अमेरिका का है। अगर वो इकट्ठे लड़ते हैं, जो भी करते हैं, पाकिस्तान उस जंग में क्यों शरीक है? Where the defense minister Mukhtar, in an interview recently, sort of said that he agreed that there could be a possibility that the United States is trying to set it up so that Pakistan becomes the target of the Taliban, so that then they can go home and you guys can fight each other. Do you think that the Taliban are being fooled in that way to fight the Pakistan government? देखिए, अमेरिका एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। वो तो यही चाहेगा कि तालिबान और उनको भी आपस में लड़ाता रहूं, दोनों पर कब्जा भी करता रहूं और पाकिस्तान को अपने लिए भी इस्तेमाल करता रहूं। लेकिन उस कमबख्त अमेरिका ने ऐसी साजिश की कि जो हमारे इंतहाई फौलादी दीवार बन सकते थे मगरब में तालिबान, उनको हमारा दुश्मन बना दिया। You support the Taliban completely? नहीं, मैं मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान को आज़ाद देखना चाहता हूँ। अफगानिस्तान के अवाम को आज़ादी का हक हासिल है। अमेरिका को वहाँ से निकलना चाहिए। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, तो इतने बड़े मामूली सी बात के लिए आप क्यों सारे अपने आप को भी तबाह कर रहे हैं? अफगानिस्तान एक खंडर है, वीरान है, उसको आप आज़ाद छोड़ दें। Soon there'll be negotiations with the United States, with the Taliban in Afghanistan, and with Tehrik-i-Taliban in Pakistan. They're saying they want to strike a peace deal. How do you respond to that then? Do you think that that will be the end of it? Or is there this continued need to make all of Pakistan also ruled by Taliban? अफगानिस्तान से एक इंच भी बाहर कोई उनकी नज़रें नहीं है, न वो पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने मुसीबत में अपने आप को डाला हुआ है, अमेरिका के जंग में शरीक है, तो लाज़िमन तालिबान इसको भी निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान अगर इस पॉलिसी से निकल आए, कल ऐलान कर दे कि अब अमेरिका के साथ इस जंग में और नहीं है, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि यहाँ पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान कायम हो जाएगा। You used to have a Central Asian bloc here in the madrasa, and I don't know if you've met any Hizb ut-Tahrir members from Central Asia, but I would like to know if any of them came down and studied in your madrasa. नहीं, वो तो उस वक्त जब सेंट्रल एशिया आज़ाद हो गया इब्तिदा में, बहुत पहले की बात है, 9/11 के बाद, तो वहाँ से भी तालिब उलम आने लगे थे। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी भी बड़ी हुई थी और मुख्तलिफ अरब ममालिक में भी गए, सारे दुनिया में, और यहाँ भी कुछ तालिब उलम आए, कुरान मजीद इब्तिदाई वो पढ़ना चाहते थे। फिर उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया जब अमेरिका ने हमला शुरू किया अफ़गानिस्तान पर, तो अब उन बेचारों को रास्ता तो नहीं है, कहाँ से आ जाएंगे वो? Another question concerning this idea of a jihad being a struggle, and then this concept of defense of Islam. How does that compare to the idea of having a caliphate, or making sure that the Pakistan government becomes Islamic in the way that the Taliban would find it acceptable? Is there a contradiction there, that if the Americans go home and the NATO troops go home, is that the end? You're just defending that, or do you still have the end game of trying to take over countries and rule them Islamically? देखिए, एक जिहाद तो ये है ना कि हम दुश्मन और जालिम एक ताकत हमारे ऊपर बैठी हुई है, वो चला जाए।
उसके लिए भी जिहाद है। और एक जिहाद ये होता है कि हम अपने निज़ाम को बेहतर से बेहतर बना दें, हम अपने मुल्क के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए स्ट्रगल करेंगे। मैंने उसका कहा कि उसके लिए बंदूक नहीं उठाएंगे, उसके लिए पार्लियामेंट, उसके लिए अवाम को मोबिलाइज करेंगे और अवाम को कहेंगे कि मजबूर करो, इस ट्रप निज़ाम को ख़त्म करो। तो ये जिहाद और तरीके से होगा। और जो नेटो वगैरह वहाँ बैठा हुआ है तो फिर उसके लिए तो फिर हर तरीका इस्तेमाल करना होता है। Not long ago, maybe a year ago, you said that everybody in Pakistan can expect an Islamic revolution in the next couple of years. Are you still saying the same thing? मायूस नहीं है, हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर निज़ाम यहाँ लाए। इस्लामी इनकलाब का माना ये होगा कि ये करप्ट लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये जो सदर है हमारा, जो वज़ीर आज़म है, ये तमाम लोग कसूर में लगे हैं। गरीब पिस रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, लोगों के खाने के लिए तरस रहे हैं। इस निज़ाम को बदलने के लिए उसको हम इस्लामी इनकलाब कहते हैं कि वहाँ हुक्मरान ये सब कुछ नहीं करेगा, बल्कि इंसाफ भी मजलूम के घर तक पहुँचेगा। Just one last question about some of the Taliban, and I've met quite a few Taliban recently, and a few years ago I actually had a cup of tea with a member of the Taliban, and every single one that I have met has been extremely gracious and polite and gentle in our meetings. In America, the Taliban is made out to be these sort of ruthless, cave-dwelling, almost Neanderthal, inhuman creatures or something. And I just want to ask you one or two things. One thing is, why do they deal with women or with criminals with such barbarity? If the Taliban negotiate to come back into power, one of the guys I met this week actually talked about witnessing a beheading of 2 women. Is there another way of handling things that could be a little less gruesome and barbaric? Or is there a reason the Taliban handles things like that? ये सब झूठी बातें हैं, डरा रहे हैं। आपने वास्ता नहीं पड़ा तालिबान से। अब देखो ये मरकज़ है, बहुत बड़ा दारुल है, आप यहाँ घूम फिर रही हैं, आप महफूज हैं, आपकी इज़्ज़त महफूज है, आप मेरे साथ सामने बैठकर बातचीत कर रही हैं। ये इससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि अगर मुझे आप समझते हैं कि ये तालिबान का उस्ताद है तो फिर तालिबान कितने फराख दिल होंगे। वरना यहाँ फिर एक औरत आ सकती थी और इस तरह सामने बैठ सकती थी। ये सारा मगरबी प्रोपेगेंडा है और वो नहीं चाहते कि यहाँ हमारी जो हमारा गिरफ्त है अफगानिस्तान पर किसी तरह वो कमज़ोर हो जाए। तो इस प्रोपेगेंडे का तो कोई इलाज नहीं। यहाँ जब से तालिबान आ गए अफगानिस्तान में तो किसी औरत को किसी ने नहीं देखा। फिर तो खम से हेरात तक अकेले औरत जाती थी। अमेरिका को तो खुश होना चाहिए इन बातों पर। So I talked to you a little bit about the de-radicalization program that's being instituted by the Pakistan military in Swat Valley, and they have apprehended 3 years ago some young boys, and I was able to meet and talk with some of these boys. How would you feel if you discovered that some of your prized students who went out to fight in the jihad were in that de-radicalization center right now? फंडामेंटलिस्ट होना चाहिए हर नज़रिया रखने वाले कौम को अपने नज़रिए के साथ वाबस्तगी, ये बुनियाद परस्ती है। बाकी ये हाथ पाँव काटना और ये इस्लाम में नहीं है, ये तो गलत प्रोपेगेंडे किए गए हैं। ये हमारी फ़ौज खुद इंतहा पसंद है, फंडामेंटलिस्ट है, उसका अकीदा है कि ईमान जिहाद। तो ये सारी कोशिशें हैं फजूल अमेरिका को खुश करने के लिए, इससे कुछ नहीं होगा। खुद इंतहाई सारी फ़ौज अल्लाह पर ईमान रखती है, जिहाद पर यकीन रखती है और वो मुल्क और मिल्लत के लिए सब कुछ कुर्बान करती है। सेंटर अगर इस तरह बनाया है फ़ौज ने को इंतहा पसंदी तालिबान को इंतहा पसंदी से उतार लाएँ, तो मैं कहता हूँ इस तरह ये तो अच्छी बात है, लेकिन 2 सेंटर होने चाहिए। इसके साथ एक दूसरा सेंटर भी हो, हमारे फ़ौज को वो भी कोशिश करनी चाहिए, उसमें सदर ओबामा भी उस सेंटर में हो और 50 साल जो मुल्क मिल चुके इनके सरबराहान भी हों, उनको भी एक लेक्चर दे दें हमारे हुक्मरान या हमारे फौजी कि भाई खुदा के लिए भी तुम भी अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी करो। तो 2 सेंटर होने चाहिए। दोनों को इंतहा पसंदी से अगर नहीं उतारेंगे तो फिर
उसमें ओबामा जो होगा वो पहला तालिब इल्म होगा, और ये 50 साल जो हम नेटो के हुक्मरान हैं ये भी क्लास, और फिर मुझे बुलाओ, मैं इंशाल्लाह क्लास में उनका जहन सही बनाऊंगा। एक इससे नहीं होता ना कि एक बच्चों को लेकर कि इंतजार पसंद मत करो और उसको कहें कि जोर लगाओ, यानी हमारी फौज उनको तो कहे कि इंतहा पसंदी मत करो और फिर उनको कहें कि ड्रोन हमले इस फलान जगह करो, शमसी बेस से उड़ो, तो ऐसी फौज की बात कौन मानेगा? In the Quran, it says there's a hadith where Muhammad had written, through peace be upon him, he had written that Muslims do not take your religion too far about being extremists. And he said, Islam is the harbinger of life, and there should never be any death without just cause. So how would you respond to suicide bombing? Do you think that's really okay and acceptable within Islam, in the Quran? देखिए वो उसको मारते हैं जिन पर इन्होंने ड्रोन हमले किए हैं और उसका घर सारा उजड़ा है, उसका माँ बाप के चीथड़े उड़ गए हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे मर गए हैं। अब उसके पास कोई और इलाज नहीं है ना। आप खुदकुश हमलों के बुनियाद और अवामिल मुहर्रिकात को क्यों नहीं देखते? अगर ये नाजायज़ है तो क्या वो जो अमेरिका कर रहा है वो जायज़ है? उसके बारे में कभी फतवा आपने नहीं पूछा कि अमेरिका बेगुनाह बमबारी करता है, हज़ारों लोगों को मारता है, तो अब वो खुदकुश रद्द अमल में करता है, वो हमसे फतवा नहीं पूछता है कि ये जायज़ है या नाजायज़। वो कहते हैं मेरे तो ज़िंदगी सारी लुट गई, मेरा घर बार उजड़ गया, मेरा मुल्क चला गया। तो आप उसको रोक नहीं सकते जब तक पॉलिसी पर नज़रसानी न करें। वो बच्चा हमसे नहीं पूछता है कि मैं अपने पर चीथड़े उड़ा रहा हूँ। उसको इस हद तक गोया बनाया गया है इस रद्द अमल ने कि वो हर चीज़ से, वो कहते कल मुझे ये ड्रोन हमले से मारते हैं तो आज खुद अपने आप को क्यों ना मारूं। This is a pin from one of the little boys in the de-radicalization इल्म की center. निशानी है। And he made that from hand. तो कुरान करीम की आगाज इस लफ्ज़ से होता है, इकरा, पढ़ना, और कलम, अल्लमा बिल कलम। कलम। पहली वही की जो पहली आयत है उसमें इल्म और कलम की बात है। किसी दूसरे मजहब में कहीं ऐसा नहीं है कि अल्लमा बिल कलम, अल्लाह ने तो इल्म दिया कलम के जरिया। तो कलम तो हमारे इस्लाम का बिल्कुल पहला महवर है, पिलर है। गोया बड़े शुक्रगुजार हैं, आपने बहुत कीमती चीज़ दी है, बड़ा खैर मकदम करते हैं, और आपकी दिलचस्पी जो है इस्लाम से, इन मसाइल से, इसका बड़ा असर हुआ मुझ पर। आप पूरी स्टडी करके आई हैं, और इस तरह हमारी अगर मुलाकातें और बातचीत, इफ़हाम तफ़हीम जारी रखते हम लोग तो ये इस हद तक ये आग न फैलती। Thank you very much for saying that. I also think we need to have more discourse on an open level like this. And it's been a real honor interviewing you tonight, so thank you. As we leave, we pay our respects to the gravesite and the grounds of Maulana Samuel Haq's family. Here is the resting place of his father, the founder of Dar al-Uloom Haqqaniya, Maulana Abdul Haq. And life here seems pretty normal, like life everywhere else in the world, where children are playing the same games, here playing cricket, hanging tightly to each other, and just doing what kids do best, enjoying summer. After a long journey, we again head home. What have we learned? Do I now understand radicalism? In a word, no. But I have come to realize that both sides of this war on terror sees the other side as radical. And God seems to be on everybody's side. Both sides of the war claim self-defense, while the suicide bombers and drone strikes continue to break the hearts of mothers, wives, and other family members. Thousands of soldiers from all over the world who come to Afghanistan will never go back home. When everybody on each side thinks they are right, perhaps it is time to start begging the question of oneself, am I wrong? Nobody seems willing to do that yet. After Maulana, I am again humbled by another experience of this journey here in Pakistan. He was not scary, he was not violent, and he was not disrespectful towards me, a woman. But he did say one most striking thing that no leader through all of these years of war has done yet. He provided an exit strategy. He put it quite simply. He said, America, if you extend your hand in friendship, all hatred will be forgotten.
You're watching Evening Hour with Kirsten Seymour. Have a good night.